नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूएसडी आईएनआर के वीकली एनालिसिस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर से जानेंगे कि यूएसडी आईएनआर का अगला मूव क्या हो सकता है, डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और मेरा एनालिसिस क्या कहना चाह रहा है। So hello friends, we welcome you all to our YouTube channel, The IQ Traders. In this video, once again we will analyze USD INR further move and we will try to find out the next momentum for USD INR. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी हैव अ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। तो दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से पहले ये चार्ट, वीडियो शुरू करने के लिए ये चार्ट। So दोस्तों, this is weekly chart for USD INR and the weekly chart of USD INR is suggesting a consolidation on the weekly basis. Like we can see the candle is trying to move above this weekly high but has rejected from somewhere around 74 levels, and it has also made the higher low formation. Higher low formation is like the 73.14 is the recent low, weekly low, and the last low was somewhere at 72.92. So that means that the candle has formed the higher low formation, and if we consider this high, we can also say the candle has formed the higher high formation, but that is overall consolidation, as 74 levels are extreme resistance where it has resisted the last. So on the daily chart we can easily see the consolidation formation here. Like the earlier zone, the candle rejected from these levels. The candle is consolidating somewhere between 74 to 73 levels, and on the second last trading day, that is 10th September, we have also seen a quick rejection from the lower levels, that is from 73.25. On the hourly formation, we have also discussed in the earlier video that the formation is like the higher. This can be considered at high, this can be considered at low. So this will be the lower high, and this will be considered at the higher low. So the candle has formed the higher high formation, but it has shown the rejection. But the candle has respected the lower zone of this range, that is somewhere around 73.2, and we have seen a quick rejection candle here. That candle has also called the stop loss hunting candle or something like that. But this candle will tell us that there is a demand zone here in the lower side, that if the USD INR would come on the lower side, it will get demand, and the USD INR will goes to the higher side. So this could be the demand zone. So whenever the USD INR trades below this low, only trades below this low, the candle only trade below this low, I will be bearish. Otherwise we should have a view of consolidation to bullish formation, consolidation to bullish. And on the more lower time frame, 5 minutes time frame, if we want to check that rejection candle, what has happened on that rejection candle on 10th. So this is the rejection candle on 10th. We can see here that the three candle formation at somewhere around 11:50 to 12 hours in the morning time, 11:50 to 12 hours, these three candles has formed, where the candle has quickly comes on the downside and it has taken a demand on the upside. It could be short covering, it could be long build up. We will see with the data, but this is the three candle formation where the price has not tested again this zone. So this zone could be a good demand zone for the next trading sessions. तो दोस्तों, कैंडल फॉर्मेशन में this is enough for candle formation chart. We will further check the data. Let me continue my conversation with Hindi for charting. तो दोस्तों, चार्टिंग के लिए मैं हिंदी में अब आपको बताना शुरू करता हूं। वीकली चार्ट से हम चलते हैं। वीकली चार्ट में
वीकली चार्ट में एक हायर हाई इसने बनाया था, एक हायर लो बना था, लेकिन ये हायर हाई हम इसे बोलें या ना बोलें ये समझने की बात है, क्योंकि यहां इसने एक अच्छा रिजेक्शन दिया था 74 के लेवल पे। दूसरी बात, यहां जब 10 तारीख को हमने ट्रेडिंग देखी थी तो यहां एक अच्छा बिल्ड, यहां एक अच्छा रिजेक्ट लोअर साइड से सपोर्ट फॉर्मेशन नजर आया था, जो कि कैंडल 5 मिनट के अंदर नीचे जाके ऊपर गई थी, जिसे स्टॉप लॉस हंटिंग भी बोला जा सकता है। दोस्तों डेली चार्ट में हमें कंसोलिडेशन नजर आता है, जैसा कि ये कैंडल इस जोन को लो ब्रेक करके नीचे आई थी, तो कैंडल अब इस जोन 73 से 74 के जोन में ट्रेड कर रही है। दोस्तों आवरली चार्ट में देखेंगे, जब जैसा कि हमने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि ये एक हाई बना है, ये एक लो बना है और एक लोअर हाई यहां बनता है, एक लोअर हायर लो यहां बनता है। तो जो जिस भी साइड ये ब्रेक करता है उस साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां इसने इस हाई को ब्रेक करके टैग करके एक हायर हाई बनाया था। आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोज की थी, लेकिन अगली कैंडल्स दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाई और वो नीचे आ गया, यानी इसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई देखने को मिली और यूएसडी आईएनआर नीचे आ गया। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग सप्लाई देखने के साथ साथ यूएसडी आईएनआर ने यहाँ एक डिमांड भी देखी, जबकि ये इसे टेस्ट करने नीचे गया था। तो इस अकेली कैंडल में आप देख सकते हैं इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ये कैंडल वापस ऊपर चली गई थी। तो इसका मतलब यहाँ एक डिमांड जोन हमें बनता हुआ नजर आता है। आने वाले दिनों में यदि इस डिमांड जोन को ये ब्रीच करके इस लो को, जो कि इसका 72.92 के लगभग लो है, इस लो को ट्रेड करके नीचे जाएगा, तभी हम इसमें एक बियरिश फॉर्मेशन देख सकते हैं। अदरवाइज हम इसमें कंसोलिडेशन से बुलिश फॉर्मेशन की तरफ ही अपनी अप्रोच रखेंगे। दोस्तों 5 मिनट के चार्ट में भी मैं आपको वो उस स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल का फॉर्मेशन दिखा देता हूं। ये तीन तीन कैंडल्स हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग वाली फॉर्मेशन है। 11:50 से 12 बजे के लगभग में ही ये काम हुआ था 10 तारीख को, जिसमें ये कैंडल बनी थी, दो वॉल्यूम के साथ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। इन कैंडल का एनालिसिस हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे और जानेंगे कि ये कैंडल्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग है या लॉन्ग बिल्डअप है, किस तरीके से हम इस डेटा को एनालाइज करें। लेकिन समझने वाली बात यह है जो मुझे दिख रही है कि इस कैंडल इस जोन को द्वारा अभी तक टेस्ट नहीं किया गया। तो इस जोन में यदि ये द्वारा आता है, यूएसडी आईएनआर इस कैंडल के जोन में ये द्वारा आता है, तो इसे फिर से यहां एक डिमांड देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब हम इन कैंडल्स का एक बार हम इन तीन कैंडल्स का फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 5 मिनट का डेटा डाउनलोड किया हुआ है, 10 तारीख का 5 मिनट का ओपन इंटरेस्ट का डेटा डाउनलोड किया हुआ है। तो उसमें मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं दोस्तों, जो ये आप स्टीप फॉल देख रहे हैं, ये जो स्टीप फॉल देख रहे हैं, ये वही उसी कैंडल के टाइम का ओपन इंटरेस्ट का फॉल है। इसी तरह आप डिफरेंशियल ओआई जो मैंने लिखा है वो ये है कि इस टाइम में हर 5 मिनट में कितना ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों एक अकेली बड़ी लाइन आप देख रहे हैं जो इन सभी लाइंस के कितने गुना बड़ी है, जो नेगेटिव साइड में है। दैट मींस कि अकेले 5 मिनट में, अकेले 5 से 10 मिनट में इतना हाई ओपन इंटरेस्ट, जो कि हमें क्यूमुलेटिव से भी नजर आ रहा है, वो ट्रेड हुआ था। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम वीवैप देखने की कोशिश करें कि उस 5 मिनट में वीवैप ने क्या किया, तो वीवैप में भी आपको नीचे डाउन और अगले ही मिनट बाउंस नजर आ रहा है। तो दोस्तों डेटा को यदि हम देखना चाहें, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो डेटा हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हर 5 मिनट में जो भी ट्रेडिंग होती है ओपन इंटरेस्ट की, वो लगभग यहाँ लिखी है, जो कि मैक्सिमम 2000, 3000, 1000 के लगभग होती है। लेकिन यहां आप देखेंगे कि एक अकेले 5 मिनट में 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग हुई। तो दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ गया था, जो कि हमें चार्ट फॉर्मेशन से भी नजर आता है। तो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ अनवाइंडिंग। अब ये क्लियर केस है अनवाइंडिंग का, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ किसी बड़े प्लेयर ने या ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को हेवीली क्लोज किया है। हेवीली क्लोज करने का मतलब ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये लो लेवल पे क्लोज किया गया है, प्राइस इसके ऊपर गया है, अभी तक वो टेस्ट नहीं किया गया, तो दैट मींस कि यहाँ शॉर्ट्स को कवर किया गया होगा, शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया होगा। तो शॉर्ट पोजीशंस को यदि क्लोज किया गया है दोस्तों, तो ये एक डिमांड जोन बनकर आता है, यानी अब प्राइस इसके नीचे जाएगा तो वहां एक डिमांड उसे देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो इंग्लिश में मैं एक बार इस बात को बता देता हूं। सो फ्रेंड्स, इन इंग्लिश वी हैव स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन। तो हम वी हैव डिस्कस्ड इन द चार्ट दैट द लास्ट that the 5 minute chart that the formation we have seen for 10th September, that the
what is the analysis of that candles we will see in the data. So we can see in the data, in the cumulative data, we can see that the on at around 11:50 to 12 hours we can see a deep fall in the open interest. We can also see in the differential OI, that is 5 minutes OI, that the huge negative big line which is very very big with the other lines. So we can see this huge big negative line, that this is the only this line we have seen the negative open interest develop. That means in somewhere 5 to 10 minutes a huge number of open interest has been unwinded. So in the VWAP data we can also see that at particular that time at around 11:55 somewhere the price has moved to the upside, the price has come to the downside, but it quickly moves to the upside. That means the positions are closed on the lower side. When the positions are closed on the lower side, the price boost on the upper side and it has not tested again the low side. That means ki the shorts has covered on the lower side. I have also highlighted the data for the time. This is the data. I have highlighted the data for the time. We can easily see that on the 5 minutes trading itself, there are trading somewhere around 3,000 to 5,000 contracts. But in this 5 minute itself, there are 1,14,000 contracts traded, open interest unwinded, and the volume is somewhere around 22,84,000, 3,80,000 volume in the 5 minutes. Means you can see in our in around 5 to 10 minutes there is very very good volume generated, very very good open interest unwinded. That means I think the shorts which I have made earlier in the system has been covered in these 10 minutes. So we can see, and the price has not yet come again in the zone, so we can see a good demand in the further sessions if the price come on these levels. This is my conclusion from this data. We will proceed further. We will proceed further for our futures data. So in the futures data, in the last week we have seen the unwinding on the 10th September, which will be discussed earlier now, and on the 11th September itself it has unwindings. Means the unwinding data represents uh, there is no view of the traders in the market. Like if we have build up, so we can assume that there are some directional views, but unwinding data also suggests that there is no view in the market in the traders. So if we see the day-to-day open interest data, we can also see at the 75 levels, the call option is having open interest. Highest open interest is at 75, which is shifted to 74, and the 73.5 being the second one, and put options being put open interest is 73.5 has the highest open interest, and the second highest open interest is at 73. What are these data are? I have added the 74 and 73.5 open interest, which is somewhere around 3,88,000, and I have added maximum put 1,87,000 and 1,57,000 maximum, which is somewhere around 345. So we can assume that in the range of 73 to 74 we have a good, very very good open interest in the data, very very good open interest in the data. So this data shows the good tussle level in the consolidation range of 73 to 74. So in the coming days also we can see a good premium decay between the range. तो दोस्तों मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं, हमने एनालिसिस किया था तो फ्यूचर्स में हम देख लेते हैं डेटा को। तो 7 से 11 सितंबर के बीच में यदि आप डेटा को देखेंगे तो 10 तारीख में आपको 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आता है। ये जो 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, एक ही दिन में कम हुआ है, इसका एनालिसिस हम अभी पहले कर चुके हैं। और दोस्तों 11 तारीख में भी आपको ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आता है। जब भी ओपन इंटरेस्ट कम होता है तो हमारे पास कोई अच्छा व्यू नहीं होता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ट्रेडर्स का भी बाजार में कोई भी व्यू नहीं बन रहा है। जब भी बिल्डअप होगा और हमें प्राइस एक्शन में डायरेक्शन दिखेगी तो उसके बाद हम अपना एनालिसिस डायरेक्शनल कर सकते हैं।
और दोस्तों ऑप्शंस के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता देता हूं कि कॉल में ओपन इंटरेस्ट जो था वो 75 पर था, जो 74 पर मैक्सिमम शिफ्ट हुआ है। पुट साइड में ये 73.5 पर बना हुआ है मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 73.5 की कॉल में आ गया है और पुट साइड में ये 73 पर है। तो आप देख रहे हैं कि 73, 73.5 और 74 ये तीन स्ट्राइक्स कॉल और पुट में बहुत ज्यादा एक्टिव स्ट्राइक्स हैं, जो कि हमें प्रीमियम से भी नजर आती हैं। उसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ 74 और 73.5 का फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जोड़ दिया, जो कि 3,88,000 के लगभग होता है। 73.5 की पुट का और 73.5 का सेकंड हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट जोड़ दिया, जो कि 3,45,000 के लगभग होता है। तो हम यदि इन दोनों को ऐड करते हैं, इन डेटा को यदि हम इस डेटा को यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि 73 से 74 की जोन में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट इस टाइम पे चल रहा है, जो कि हमें गुड टसल, बहुत अच्छी टसल हमें दिखाएगा। इससे हमें यह समझ आता है कि 73 से 74 के जोन में अभी आगे आने वाले दिनों में और अच्छा प्रीमियम इरोजन होगा। और यदि कोई एक डायरेक्शन मिलती है तो वो डायरेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से मूव होने वाली है, क्योंकि दूसरी पार्टी ट्रैप हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें 73 और 74 के बीच में और ज्यादा प्रीमियम इरोजन के चांसेस लगते हैं। So friends, we have analyzed option data, futures data, and we have checked the data. Now the strike wise data I will show you of 72 call. 72 call का strike wise data हम देख लेते हैं। So in the 72 call the data the open interest formation up to 90,000 which has formed earlier in the first week of September, it has started unwinding. It has started unwinding, we can see on 11th September somewhere 9-10, but that is not sufficient. That unwinding is not sufficient, so we should care of 72 CE option as well. तो दोस्तों 72 की सीई के बारे में हम बात कर रहे थे, जिस पे हमने नजर रखी हुई थी। तो उसमें 90,000 के अराउंड जो ओपन इंटरेस्ट पिछले पहले हफ्ते में सितंबर के बना था, तो वो अभी अनवाइंड होना शुरू हो गया है, लेकिन वो अभी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। अनवाइंडिंग तो हुई है लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं हुई कि हम ये कंक्लूड कर सके कि अब ये बिल्कुल ही नीचे नहीं जाएगा। तो 72 सीई के डेटा पर भी हमें नजर रखनी होगी। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक नई शीट मैंने ऐड की है स्ट्रेडल के नाम से, इसके बारे में भी बता देता हूं। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ओपन इंटरेस्ट डेट वाइज ओपन इंटरेस्ट हमने कॉल और पुट का स्ट्राइक वाइज लेना शुरू किया है और उसका पुट कॉल रेशियो फॉर्मेशन देखना शुरू किया है। जैसे 73.5 का अगर आप देखेंगे डेट वाइज डेटा, तो 10 तारीख को इसमें ओपन इंटरेस्ट लगभग सेम था, जो कि 1 का पुट कॉल रेशियो था। 11 तारीख को ये पुट कॉल रेशियो 0.98 हो गया, स्लाइटली रेजिस्टेंस जोन में आ गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि 73.5 पर एक स्लाइटली रेजिस्टेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों जैसे पुट कॉल रेशियो डिक्रीज होता है तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो रही है, पुट कॉल रेशियो इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे सपोर्ट फॉर्मेशन हो रही है। तो इससे भी हम यहाँ पुट कॉल रेशियो से भी हम स्ट्राइक वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे 74 में आप देखिए 66 से 65 आया है, डॉट 66 है, 1 से नीचे है। ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का पुट कॉल रेशियो हमें बताता है कि 74 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 73.5 का हमने देख लिया। 73 का देखिए ये 1.42 से 1.5 है, पहले तो 1 से बड़ा है तो ये एक सपोर्ट है, और 1.42 से 1.5 हुआ है, यानी कि ये सपोर्ट ऐड हुआ है। तो इस तरीके से भी हम पुट कॉल रेशियो को एनालिसिस करते हैं, तो वो हमने यहाँ करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ दोस्तों इस शीट में हमने ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट ग्राफिकल फॉर्मेशन में देखने की कोशिश की है डेट वाइज। जैसे मैंने 11 सितंबर लिखा, तो 11 सितंबर में मैंने यहाँ मिड स्ट्राइक डाली और एडिशन डाला कि मुझे इतना डाटा चाहिए, इस तरीके से स्ट्राइक चेन चाहिए। तो 73.5 को मिड मानते हुए इसने हमें ग्राफिकल फॉर्मेशन दिखा दिया ओपन इंटरेस्ट डेटा का, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस फॉर्मेशन में आपकी 74 पर जो ब्लू कलर की लाइन है वो बहुत बड़ी है, 2 लाख को लगभग टच भी कर रही है। दैट मींस कि ओपन इंटरेस्ट 74 में 73.5 में बहुत हैवी है। ओपन इंटरेस्ट 73.5 की पुट में भी बहुत हैवी है, जो कि आप देख रहे हैं दोनों लगभग 2 लाख को टच करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा टसल दोनों में चल रहा है। तो दोस्तों 73.5 की स्ट्रेडल की वैल्यू आप देख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। इस वैल्यू के बाहर अगर ये ट्रेड करने लगता है तो ये जरूर डायरेक्शनल मूव ले सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी डेटा में जो चेंजेस होंगे वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे।
तो इस तरीके से हम इस डाटा को देख सकते हैं. So friends, what I am discussing is I have prepared a new sheet that is I named as straddle. So in this sheet what I did is I have find the put call ratio date by date, like for the 73 strike and for expiry of 28th September. So we have recorded data for the put call ratio, and we can see since the put call ratio is greater than 1, so this is a support formation. And since the put call ratio from the last day, that is 1.42 to changes to 1.5, that means the support has been added. So if we see the data for 73.5, so we have the put call ratio similar to 1 on 10th, and that is 0.98. That means the resistance has been added on the 73.5 side. And for the 70 for strike, if we see the, since this is less than 1, that is called the resistance zone. So in the resistance, that has changed from 0.66 to 0.65, that means the resistance has been added. So if we see the at the 74 levels, the resistance is adding. In the 73 level, the support is emerging. That means ki range is between 73 to 74, and that is very high range. So if we can also see, we can also make a sheet here, that we can also make a graphical representation here on with the date wise. We have taken different strikes with the date wise. We will write the strike here, we will add what are the strike changes we want to see. So these are open interest data. So this open interest data has been changed into the graphical presentation here. So blue colored line is for call open interest, and the other is for put open interest. So we can see that the open interest at 74 level is nearly touches 2 lakh open interest, which, and at 73.5 also call and put open interest is near somewhere around 2 lakhs. So it also clearly shows that 73.5 straddle is having a very good tussle, and the value of 73.5 straddle is very important for us. Please write that value. If the 73 whenever USD INR get out of that straddle value, it should take a directional move. That is our conclusion, and that is our analysis. So friends, I hope you like our analysis. If you like our video, just do share with your friends, and please help us growing our channel. You can mail us at acutrader@gmail.com. You can also follow us on Twitter at the rate acutrader. On the Telegram, we are having a channel, the acutrader, and we are having a chat group as well, that is the acutrader chat, where a lot of good traders are sharing their views and trading accordingly. Thank you friends. Thank you दोस्तों.